We'll start with the problem number 3. Problem number 3. This problem number 3 is a very fine combination of your marginal costing and budgetary control. ठीक है, और जो अभी मैंने सारी बातें जो डिस्कस की ये उससे रिलेटेड है बिल्कुल. सो लेट्स कम टू दैट नंबर 3. क्या दिया देखिए. A company is engaged in the manufacture of a specialized sub-assemblies required for certain electronic equipments. The company envisages that in the forthcoming month, December 2002, the sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2 respectively of sub-assemblies ABC, MCB and DP. तीन प्रोडक्ट हमारे पास ABC, MCB and DP. The following is the schedule of components required for manufacture. इसको ये जो तीन प्रोडक्ट है इसको लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसके डिटेल्स आपको दिए. देखिए, व्हाट वी हैव टू मैन्युफैक्चर इज सब असेंबली जिसका नाम है ACB, MCB, DP. उसकी सेलिंग प्राइस है 520, 500 and 350. अभी जो सारी सब असेंबलीज है ACB, MCB and DP, इसमें लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो है बेसबोर्ड, IC08, IC12 एंड IC26 नाम के कोई कंपोनेंट्स हैं. अब उसकी क्वांटिटी कितनी लगती है. ACB के लिए बेसबोर्ड चाहिए 1, IC08 8, IC12 4 एंड IC26 रिक्वायर्स 2. MCB के लिए बेसबोर्ड 1, IC08 2, IC12 10 एंड IC26 6. अकॉर्डिंगली फॉर DP 1 2 4 8. परचेज प्राइस बेसबोर्ड की परचेज प्राइस 60, IC08 20, IC12 12 एंड IC26 8. सो जो जो प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं ACB, MCB, DP, उसमें 4 कंपोनेंट लगते हैं और किसकी कितनी क्वांटिटी लगती है और उसकी परचेज प्राइस आपको दी है. The direct labor time and variable overheads required for each of sub assemblies are. Direct labor time and variable overheads required for each of the sub assemblies are labor hours per sub assembly, grade A and grade B, and at the same time variable overheads per sub assembly. देखिए ABC के लिए ग्रेड A 8 hours and ग्रेड B 16 hours, उसको वेरिएबल ओवरहेड से 36, MCB 6 12 24, DP 4 8 and 24, and wage rate grade A rupees 5 per hour and grade B workers rupees 4 per hour. The labor works 8 hours a day for 25 days a month. The opening stock of sub-assemblies and components for December 2002 are as follows. So sub-assembly मतलब जो प्रोडक्ट हमको बेचना है अल्टीमेटली, इसका हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है ABC 800, MCB 1200, DP 2800 एंड कंपोनेंट जो है उसका भी स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास. बेसबोर्ड 1600, IC08 1200, IC12 6000 एंड IC26 4000. Fixed overheads amount to rupees 7,57,200 for the month, and the monthly profit target of rupees 12 lakh has been set. Fixed overhead amounted to 7,57,200 and monthly profit target is rupees 12 lakh. Company points for a reduction of closing inventories for December 2001 of sub assemblies of December 2002 कर लीजिए, यहाँ पर 2001 है. The company is poised for a reduction of closing inventories for December 2002 of sub-assemblies and components by 10% in quantity as compared to the opening stock. Company चाहती कि closing में हमारे पास जो stock रहेगा, it will be 10% less than the opening stock. Prepare the following budgets for December 2002. Sales budget in quantity and value, production budget in quantity, component usage budget in quantity, component purchase budget in quantity and value, manpower budget showing the number of workers and amount of wages payable. CA final November 98. $20 marks पर. और मेरी ये डेयरिंग कि पहला प्रॉब्लम में बजटरी कंट्रोल का ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द
confidence of the student. See, बहुत सिंपल है, तो इसके ऊपर मत जाओ, ये कुछ नहीं है, ये फाइनल कुछ नहीं रहता, सिंपल है सब, ठीक है। बस एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए हमारे तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं, एसीपी, एमसीपी और डीपी, ये तीन प्रोडक्ट हैं। उसको लगने वाले चार टाइप के रॉ मटेरियल है। एक लगता है बेसबोर्ड, एक है IC08, IC12 एंड IC26 नंबर के तीन कंपोनेंट और एक बेसबोर्ड, ऐसे चार कंपोनेंट लगते हैं। हमें टारगेट जो है, अच्छा हाँ, उसकी कितनी क्वांटिटी हर एक प्रोडक्ट की लगी वो क्वांटिटी आपको दी है, उसकी परचेज प्राइस आपको दी है। ऊपर से जो भी आर्स आपको लगेंगे, लेबर आर्स जो लगेंगे, हर एक प्रोडक्ट के लिए दो टाइप के वर्कर्स काम करते हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी वर्कर्स काम करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए कौन से वर्कर के कितने आर्स लगेंगे और उसका आर्डर रेट भी आपको दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं। फिर सभी कंपोनेंट्स एंड जो फिनिश गुड्स है आपके एसीपी, एमसीपी एंड डीपी, इनका ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या करना है, जितना ओपनिंग है उससे 10% आपको क्लोजिंग मेंटेन करना है। आपका टारगेटेड प्रॉफिट है 7,57,200 और आपकी फिक्स कॉस्ट रुपीज 12 लाख, ठीक है। यू हैव टू ड्राफ्ट अ बजट इन विच व्हाट शुड बी योर सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, देन परचेस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा वो, हाउ मेनी वर्कर्स यू रिक्वायर्ड, व्हाट विल देयर पेमेंट, ऐसी कुछ चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज इसके अंदर सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप सेल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बाद में देखेंगे स्टॉक पोजीशन पर, लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हम सेल करें। और उसके लिए हमारे पास चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज आवर टारगेटेड प्रॉफिट। व्हाट इज आवर टारगेटेड प्रॉफिट? इट इज 12 लाख इज माय टारगेटेड प्रॉफिट एंड माय ओवरहेड्स, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था पहले शायद से। ओके, माय प्रॉफिट इज 12 लाख एंड माय फिक्स ओवरहेड्स इज 7,57,200। नाउ अभी भी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा था, इन whenever the sales, whenever the profit target is given, उसके लिए पहले आपको फिक्स कॉस्ट कवर करनी पड़ती है। इट मींस यू रिक्वायर टू कैलकुलेट फर्स्ट डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग हियर? नाउ सी डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे, अभी यहाँ पर तो एक से ज्यादा यूनिट्स है, तो सबसे पहले आपको हर एक यूनिट का क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए एसीबी, एमसीबी, डीपी, इसकी सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, बराबर है। अब इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको निकलता आएगा, क्योंकि उस एक प्रोडक्ट को लगने वाले कितने कंपोनेंट्स हैं और हर एक की क्या प्राइस है, ये प्रॉब्लम में दी है, बराबर है। उसको लगने वाले वेजेस के कितने आर्स हैं और क्या वेज रेट है, ये आपको दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स आपको दिया है। यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। आपको एक चीज मैं और याद दिला दूं, हमारे पास जब ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट करते थे, ब्रेक इवन पॉइंट, तो उस ब्रेक इवन पॉइंट में फॉरगेट अबाउट दिस बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते थे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते तो उस केस में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालते उसको क्या कहते थे हम लोग, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर भी तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो यहाँ पर भी हमको कंपोजिट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिया प्रॉब्लम के सेकेंड लाइन, द कंपनी envisaged that in the forthcoming month December 2002 the company sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2। इसका मतलब सेल्स मिक्सचर जो बनेगा उसमें हमेशा 3 यूनिट्स ऑफ एसीबी, 4 यूनिट्स ऑफ एमसीबी एंड 2 यूनिट्स ऑफ
डीपी यहाँ आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम कीजिए, पहले जस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे। नवंबर 98, here particulars, then 3 प्रोडक्ट के लिए 3 कॉलम और एक टोटल बनाएंगे आप यहाँ पर। मेरे साथ साथ करेंगे आप, एक फुल पेज बनाओ स्टेटमेंट। particulars, ACB, MCB, DP एंड टोटल। देखिए करते चलिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अभी स्टेटमेंट को कोई हेडिंग ना दे, हम देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देन विल डिसाइड व्हाट शुड बी द कन्वीनियंट हेडिंग। ओके, चलिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस, पर यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या दिया आपको? 520, 500 एंड 350। 520, 500 एंड 350। इसकी टोटल मत करना। देन लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, मेरे साथ साथ में लिखते चले, वेरिएबल कॉस्ट इन दैट नंबर 1 और ए कंपोनेंट, कंपोनेंट। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हमको लगते हैं दैट इज बेसबोर्ड, IC08, IC12 एंड IC26। अब आप देखिए ACB के लिए कितने बेसबोर्ड चाहिए? एक, और उस एक बेसबोर्ड की प्राइस कितनी है? 60। इसका मतलब बेसबोर्ड 60। देन ACB के लिए कंटिन्यू कीजिए बस। IC08 कितने चाहिए? 8 यूनिट्स, एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट 1 यूनिट? 20। So 8 into 20, 160. Then IC12, we require 4 units into price is 12. So 4 into 12, 48. IC26, we require 2 units into 8, 16. Got it? जो मटेरियल कॉस्ट चाहिए उसमें क्वांटिटी आपको दी है, कितने कंपोनेंट लगते हैं, उसकी परचेस प्राइस दी हुई है आपको। देन सिमिलरली फॉर MCB, एक बेसबोर्ड 60, देन 2 IC08, so 2 into 20, 40, IC12 10 into 12, 10 units into 12, 120, and IC26 6 into 8, 48. IC then DP के लिए 1 baseboard 60, ACP we want कितने? 2, so 2 into 20, 40, IC12 4 into 12, 48, and IC26 8 into 8, 64। ये होगी हमारी कंपोनेंट कॉस्ट। ठीक है, देन B, वेजेस। वेजेस, अब जो वेजेस है वो 2 टाइप के वर्कर्स हैं यहाँ पर, देयर इज अ ग्रेड A एंड ग्रेड B। ग्रेड A एंड ग्रेड B। तो जरा देखिए अगले स्टेटमेंट में दिया है, द डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब असेंबली। ग्रेड A, ग्रेड B। देखिए ABC के लिए ग्रेड A
requires 8 hours. ग्रेड ए के 8 घंटे काम करना पड़ेगा. सो ग्रेड ए वर्कर्स विल वर्क फॉर 8 hours एंड यू विल पे द वेजेस. नीचे दिया हुआ है कितना 5. इसका मतलब ग्रेड ए के वर्कर्स को देने पड़ेंगे 8 into 5 कितना 40 रुपीज वेजेस फॉर ग्रेड ए. और एबीसी के लिए ग्रेड बी के लगेंगे 16 hours एंड दैट 16 hours इज टू बी पेड. ग्रेड बी का रेट क्या है 4. तो 16 into 4 इज 64. अरे समझ में आया कि है? दो टाइप के वर्कर्स चाहिए, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. ग्रेड ए एबीसी के ग्रेड ए लगते हैं हमको 8 hours और उसका रेट है ₹5. सो 8 into 5 40. एंड उसी एबीसी के लिए ग्रेड बी के चाहिए 16 hours एंड 16 hours एट द रेट ऑफ ₹4. 16 into 4 64. सिमिलरली एमसीबी के लिए ग्रेड ए 6 hours 6 hours into 5 30 और उसी के लिए ग्रेड बी 12 into 4 48. डीपी के लिए ग्रेड ए 4 hours ₹5 4 into 5 20 and grade B 8 into 4 32. Is it? Then C variable overheads. Variable overheads जो कि डायरेक्टली दिए हुए आपको. इट इज एबीसी के लिए 36, एमसीबी के लिए 24 एंड डीपी के लिए भी 24. Got it? So number 3 contribution. Contribution per unit 1 minus 2. 2 मतलब उसमें component wages and variable सब आ गए. So 520 में से सब लेस कर दो and get your contribution per unit 96 130 30 and then 62. Okay, so it comes to 96 130 and 62. ये क्या contribution per unit. Got it? अब देखिए पहली लाइन क्या थी प्रॉब्लम की. ये आ गया सबका contribution. Then second line में क्या दिया? The company envisages that in the forthcoming month December 2002 the sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2 respectively of sub-assemblies ABC, MCB and DP. मतलब जब भी आप सेल करेंगे it will be always in the ratio of 3:4:2. मतलब जब भी आप सेल करेंगे तो ACB के 3 units, MCB के 4 units and DP 2 units. 3 4 2. थ्री फोर टू मतलब जब भी सेल होगा तो हमेशा 3 units of ACB, 4 units of MCB and 2 units of DP. इसका मतलब सेल्स रेशियो और सेल्स प्रोपोर्शन therefore contribution per sales mix तो जब भी हम सेल करेंगे हमेशा 3 यूनिट एबीसी, 4 यूनिट्स एमसीबी और 2 यूनिट्स डीपी के. मतलब ये जो एक सेल्स बंच बनेगा 3 4 और 2 यूनिट का मिलकर ये जो एक बंच बनेगा इस एक पूरे एक बंच का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट याद है आपको. सो 96 into 3 it is 288 520 and this is 124. बराबर है. तो एक बंच सेल जब करेंगे तो उसमें 3 यूनिट्स एसीबी, 4 यूनिट्स एमसीबी और 2 यूनिट्स डीपी के रहेंगे. सो एट ए टाइम 1 बंच का मिलाकर कितना आएगा कंट्रीब्यूशन. कितना आएगा 932. टेक इट इन द टोटल कॉलम. टोटल कॉलम का खाता खुल गया. ठीक है. सो एक बंच का कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा 932. इज दिस क्लियर. अब देखिए जब एक बंच बेचेंगे तो विल गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 932.
सो ऐसे कितने बंच हमको सेल करने पड़ेंगे सो दैट विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12 लाख, और 12 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए पहले फिक्स कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी 7,57,200. इज इट? इसका मतलब राइट डाउन डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन. डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 7,57,200 plus 12 lakh 19,57,200. 19,57,200. 7. Therefore, number of sales mix, that is 6 divided by 5. 19,57,200 इतना हमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और एक सेल्स मिक्स बेच के हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है 932. सो हाउ मेनी सेल्स मिक्स टू बी सोल्ड? कितना? 2,100. गॉट इट? मतलब कुल मिलाकर हमें सेल्स बंच, सेल्स मिक्स सेल करने होंगे 2,100, और हर एक बंच में, हर एक मिक्स में 3 यूनिट्स ऑफ ACP, 4 यूनिट्स ऑफ MCP and 2 यूनिट्स ऑफ DP. Therefore, number of sales quantity, number of sales quantity, it is 7 into 4. So 2,100 into 3, 6,300. Then 2,000 into 4, 8,400, and 2,000 into 2 is 4,200. Got it? Therefore, number 9, therefore, sales value, it is sales quantity हमारी 6,300 into selling price. So 8 into 1. So 6,300 into 520. 32 lakh? 32,76,000. सचिन इस पार्ट को जरा जूम करके लेना, दिखेगा नहीं. हाँ, exactly 42 lakh. 8,400 into 500 is 42 lakh. 14 lakh 70 ना, 14 lakh 70,000. Is it? इसका मतलब कुल मिलाकर मेरा टोटल सेल बताइए कितना आएगा? 89,46,000. 89,46,000. ठीक है. सो बजट में सबसे पहले आपको दिया है कि हमारा टारगेटेड प्रॉफिट 12 लाख है, और वो 12 लाख का प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तो 3 प्रोडक्ट को हम किस क्वांटिटी में बेचें, सो दैट विल गेट अ टारगेटेड प्रॉफिट ऑफ 12 लाख इंक्लूडिंग योर फिक्स कॉस्ट 7,57,200. इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्या किया हमने? नथिंग बट वी अप्लाइड द मार्जिनल कॉस्टिंग हियर. हमने हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से उसकी कॉस्ट लेस कर दी. बस कॉस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब उसके अंदर कंपोनेंट है, 4 टाइप का कंपोनेंट है, हर एक की क्वांटिटी, हर एक की प्राइस है, 2 टाइप के वर्कर्स है. कंसेप्ट तो वही है ना. अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, वेजेस है और वेरिएबल ओवरहेड्स है. तो मटेरियल में 4 टाइप के मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी, उसका परचेस रेट दिया हुआ है, बस उतना थोड़ा कैलकुलेशन उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है. मार्क भी तो 20 है, वो भी तो आप देखिए फिर. ठीक है. सो एक बार आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देन इसकी सेल्स प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है 342. सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन पर सेल्स मिक्स? दैट वी गेट 932. टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 957,200. सो वी रिक्वायर्ड टू सेल 2,100 सेल्स मिक्स और सेल्स बंच. सो इन एवरी बंच, इन एवरी मिक्स देयर इज अ 342 क्वांटिटी. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दी सेल्स क्वांटिटी.
एंड सेल्स वैल्यू। क्लियर? रिक्वायर्ड का पहला पढ़ो क्या था? सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। पहला आंसर आ गया। स्टेटमेंट को हेडिंग दो, स्टेटमेंट ऑफ सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू। अब कितना सेल्स करना है ये फाइनल हो गया, लेकिन सेल करने के लिए अब कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये जो सेल्स क्वांटिटी है 6300, 8400, 4020 हमारी सेल्स क्वांटिटी है, नॉट द प्रोडक्शन क्वांटिटी। प्रोडक्शन तो डिपेंड करता है कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पर, तो आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। रीडिंग हियर, जो बनाइए अगला स्टेटमेंट। जैसे हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोडक्शन बजट इन कंपोनेंट इन क्वांटिटी। बनाइए नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन बजट। फोर कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, एसीबी, एमसीबी, टीपी। एक 5-7 लाइन का बनाना है सिर्फ। अब बताइए, ओके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जरा, एसीबी की कितनी क्वांटिटी सेल करनी है आपको? 6300 क्वांटिटी हमको सेल करनी है। अब उसमें आपको इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक कितना है। थर्ड स्टेटमेंट में दिया है, देखो आपको, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स फॉर दिसंबर 2002 आर एज अंडर। अब उसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, एबीसी का कितना स्टॉक है? 800। हमें कितना सेल करना है? 6300 को सेल करना है। ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 800। बट एट द सेम टाइम जरा क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है, नीचे दिया देखो, फिक्स ओवरहेड अमाउंटेड टू 757,200 फॉर द मंथ एंड मंथली प्रॉफिट टारगेट ऑफ रुपीज 12 लाख। अच्छा हाँ, इसके आगे देखिए, द कंपनी इज पॉइंट्स फॉर अ रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर दिसंबर 2002 ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स बाय 10% इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक। कंपनी चाहती है कि जितना उसके पास ओपनिंग स्टॉक था उससे 10% कम क्लोजिंग स्टॉक है। कंपनी चाहती है कि जितना ओपनिंग स्टॉक था उससे 10% क्लोजिंग स्टॉक कम रहे। सो इसका मतलब ये है हमारे पास एसीबी का ओपनिंग स्टॉक 800 है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा फिर? 720। अब देखिए मुझे ड्यूरिंग द ईयर 6300 यूनिट सेल करने के बाद 720 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। Are you getting this point? 6300 मुझको सेल करने के लिए चाहिए, प्लस 720 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। 720 कैसे आए? ओपनिंग स्टॉक में से 10% लेस करके, तो 800 का जो स्टॉक है उसमें से 10% लेस करके 720 आई वांट टू मेंटेन एज माय क्लोजिंग स्टॉक। मतलब 6300 सेल करो, उसके बाद 720 स्टॉक में चाहिए, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट कितनी मेरी? इट इज 6300 प्लस 720, दैट इज 7020 की मेरी रिक्वायरमेंट है। सो 7020 की रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी मेरे पास कितना है? ओपनिंग में 800 है ना, तो ओपनिंग का 800 लेस कर दो, सो 6220। दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन क्वांटिटी। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, सिर्फ कॉपी करने का काम मत करो, सोच समझ के करो। हाउ विल गेट द प्रोडक्शन क्वांटिटी? प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कई बार क्वांटिटी अकाउंट बनाते थे ना, ये उस टाइप का है बस। सो सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस
opening. जो balance है, that is to be produced. So write down. लिखेंगे number 1, sales quantity. Sales quantity. कितनी मेरी sales quantity? 6,300, 8,400 and 4,200. Number 2, add closing stock. Closing stock. ब्रैकेट में लिख के रखिए. Opening stock minus 10%. Opening stock minus 10%. तो ओपनिंग स्टॉक देखिए हर एक का. इट वॉज 800 का 10% लेस करके आया 720. एमसीबी कितना है? 1200 है ना. सो 1200 माइनस 10% 1080 एंड 2800 माइनस 280 2520. सो टोटल 7020 9480 6720. Number 3, less opening stock 800 1200 2800. Therefore, production quantity. It is 6,020, 8,280, बराबर ना? And this is 4,920. Is it? 3,920. खुश? 6,220. कौन सा? 6,220. Okay. So it comes to 6,220, 8,280 and 3,920. ये क्या हमारा? प्रोडक्शन बजट, यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी. सेल्स क्वांटिटीज है डिफरेंट, प्रोडक्शन क्वांटिटीज है डिफरेंट. प्रोडक्शन क्वांटिटी आपके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पर डिपेंड करती है. अब ये जो क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटिटी फाइंड आउट हाउ मच कंपोनेंट्स टू बी परचेस्ड. किसके कितने कंपोनेंट्स परचेज करने पड़ेंगे, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. और वही हमारी शायद अगली रिक्वायरमेंट भी है. कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी एंड कंपोनेंट परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू. अब ये क्वांटिटी मुझको प्रोड्यूस करनी है. अब इस क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाउ मच कंपोनेंट्स विल बी कंज्यूम. इसके लिए कितना कंजम्पशन होगा, और वो कंजम्पशन के बाद आई रिक्वायर टू फाइंड आउट हाउ मच कंपोनेंट्स टू बी परचेज. क्योंकि परचेज जो करना है वो अगेन डिपेंड करेगा मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माय कंपोनेंट्स. गॉट इट? सो प्लीज राइट डाउन. कंपोनेंट परचेज, कंपोनेंट कंजम्पशन, एंड परचेज बजट. चार टाइप के कंपोनेंट्स थे मेरे पास. बेसबोर्ड, IC08, IC12, IC26. अब देखिए ये जो भी चार कंपोनेंट्स हैं, इसका कंजम्पशन डिपेंड करता है कि हमें एग्जैक्टली एसीपी, एमसीपी और डीपी की कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है, कितना प्रोड्यूस करना है. उसके ऊपर इनका रॉ मटेरियल का कंपोनेंट का कंजम्पशन डिपेंड करेगा. ठीक है.
So here, see all these products, say number 1 required for very first ACP. देखिए मैं ACP बनाने 6220 और एक ACP के लिए बेसबोर्ड एक चाहिए, इसका मतलब for 6220 we required 6220 बेसबोर्ड, ठीक है। Then IC08 ACP के मुझको 6220 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ACP के 6220 यूनिट्स मुझको मैन्युफैक्चर करने हैं और एक यूनिट के लिए कितने IC08 लगते हैं? एक ACP के लिए 8 लगते हैं ना, ऐसे मुझको 6220, so 6220 into 8 49,760। 6220 ACP के लिए IC12 कितने लगेंगे? IC12 लगते 4, so 6220 into 4 24,880 and IC26 we require 2, so 6220 into 2 12,440। Got it? ये 4 कंपोनेंट हमको 3 सब असेंबलीज के लिए चाहिए, तो उसमें से ACP के लिए ये कितने कंपोनेंट्स लगेंगे? सेम थिंग फॉर MCB, we want to manufacture 8,280 of MCB, तो उस MCB के लिए एक MCB के लिए एक बेसबोर्ड लगता, so here 8,280 into 1 8,280, then IC08 कितना? 8,280 into 2, that is 16,560, then IC12 लगते 10, so 8,280 into 10 82,800 and IC26 लगते 6, so 8280 into 6 49,680, is it? Similarly DP के लिए कितना? एक DP के लिए एक बेसबोर्ड, so 3,920 के लिए 3,920 बेसबोर्ड, then 3,920 के लिए IC08 कितना? 2 ना, so 3,920 into 2 7,840, then 3,920 into 4 IC12, that is 15,680 na, and 3,920 into 8 कितना? 31,360। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? सो कुल मिलाकर कितने बेसबोर्ड? IC08 1226। So therefore total consumption कितना? 18,420। कुल मिलाकर 3 टाइप के सब असेंबली के लिए कुल मिलाकर 18,420 का कंजम्पशन होगा। $74,160 1,23,360 93,480। इतना रॉ मटेरियल का, इतने कंपोनेंट्स का कंजम्पशन होगा फॉर 3 सब असेंबलीज। आर गेटिंग हियर? क्या किया हमने? हर एक सब असेंबली जो है वो 3 प्रोडक्ट में लगती है, तो ये प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है इनटू वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सब असेंबली का मल्टीप्लिकेशन किया। तीनों के लिए लगता है, इसलिए तीनों के लिए फाइंड आउट किया। सो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, टोटल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, दिस इज द क्वांटिटी। अब देखिए बेसबोर्ड की 18,420 कंजम्पशन क्वांटिटी है, परचेस नहीं। इतना तो कंज्यूम करना पड़ेगा। अब बताइए परचेस कितना करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अरे जरा उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देखो ना फिर। हाँ, इसका 18,420 हमारे पास कंपोनेंट्स का भी स्टॉक दिया हुआ है। कंपोनेंट्स का बेसबोर्ड 1600 ओपनिंग स्टॉक है, तो ऑलरेडी 1600 स्टॉक में ना। अरे लेकिन
इसका 10% लेस करके क्लोजिंग भी तो मेंटेन करना है आपको। आर गेटिंग हियर? इसका मतलब 1600 अगर से ओपनिंग है तो 1440 इतना क्लोजिंग स्टॉक भी तो मेंटेन करना है हमको। यस और नो? हाँ, तो इसके अंदर ऐड क्लोजिंग स्टॉक, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में कीजिए ओपनिंग स्टॉक माइनस 10%। So that comes to 1440 ये स्टॉक मेंटेन करना है आपको। Then 1200 minus 10% 1080, then 5400, 3600, मतलब इतना कंजम्पशन के बाद ये क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। सो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 18420 plus 1440 19860, this is what 75240, then 1,28,760 and 97,080। प्लीज चेक, बराबर है? लेस ओपनिंग स्टॉक, तो ऑलरेडी जो हमारे पास है उतना लेस कर दो और बाकी का परचेस कीजिए। सो ऑलरेडी वी हैव 1600, 1200, 6000 एंड 4000। Therefore, परचेस क्वांटिटी कितना? 18,260, 74,040, 1,22,760 एंड 93,080। इतनी क्वांटिटी परचेस करनी होगी। कंजम्पशन क्वांटिटी अलग है, परचेस क्वांटिटी अलग है। जो कंजम्पशन है वो परचेस नहीं है, क्योंकि परचेस डिपेंड करता है आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक पोजीशन पर। इज इट? तो ये क्वांटिटी आपको परचेस करनी होगी। नेक्स्ट राइट डाउन परचेस प्राइस पर कंपोनेंट। परचेस प्राइस आपको दी हुई है, इट इज 60, 20, 12 and 8। Therefore, purchase amount 18,216 to 60 कितना? How much? 10,95,600, then 14,80,800, बराबर है क्या? 14,80,800, 14,73,120 and 7,44,640। Is it? देखिए हमारी रिक्वायरमेंट की दो चीजें हो गई इसमें। प्रोडक्शन बजट तुमने पहले किया था, कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी। कंपोनेंट यूसेज मतलब ये कंजम्पशन, ये वाला, और उसमें था कंपोनेंट परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो ये हमारा यूसेज आया और ये हमारी क्वांटिटी परचेस एंड दिस इज व्हाट द परचेस बजट। तो इसमें दोनों कवर होगा आपके, कंजम्पशन भी एंड परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। गॉट इट? बजट जो होता है इट इज इन अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज इन फाइनेंशियल टर्म्स। क्लियर? कंजम्पशन एंड परचेस समझ में आ गया आपको? देन अगला है मैन पावर बजट, शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल। अब आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर हमें जो भी एसीबी, एमसीबी, टीपी का प्रोडक्शन करना है उसको लेकर कितने वर्कर्स चाहिए, कितने वर्कर्स लगेंगे और उनके वेजेस कितने आएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है? सो बनाइए स्टेटमेंट ऑफ मैन पावर बजट। स्टेटमेंट ऑफ मैन पावर बजट।
कोई बताएगा कैसे वर्किंग करना पड़ेगा इसके लिए? थैंक यू वेरी मच, उसने बहुत अच्छे से बता दिया। सर 2-3 कॉलम कीजिए, पर्टिकुलर्स ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। नालायक, मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेशन कैसे करूं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबीसी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से एबीसी के? प्रोडक्शन वाले की परचेस वाले? प्रोडक्शन वाले, ठीक है। सो एग्जैक्टली हमको क्या देखना होगा कि जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स है, जो 3 सब असेंबलीज है, ठीक है, एबीसी, एमसीबी एंड डीपी। नाउ इन दैट किसकी कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है, किसकी कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है, सेल क्वांटिटी नहीं, कितनी क्वांटिटी हमको मैन्युफैक्चर करनी है, उसके ऊपर हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा। सो इन दिस केस तीनों प्रोडक्ट के लिए, तीनों सब असेंबलीज के लिए 2 टाइप के वर्कर्स काम करते हैं। तो पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि ग्रेड ए और ग्रेड बी के कुल मिलाकर कितने आवर्स आपको लगेंगे, पहले ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए इतना कर लो पहले। 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स ग्रेड ए, ग्रेड बी। So write down labor hours required for ACB। अब जरा देखिए ACB के लिए, ACB के कितने यूनिट्स बनाने हैं हमको? 6220। सो 6220, सचिन यहीं पर रखना, 6220 इंटू ग्रेड ए के कितने आवर्स लगते हैं उसको? 8। सो 6220 इंटू 8 आवर्स 49,760। और एसीबी के लिए ग्रेड बी के वी रिक्वायर 16 आवर्स 99,520, बराबर है क्या? 99,520 hours. Then MCB grade A requires 6 hours, लेकिन MCB के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमारे? 8,280। So 8,280 into 6, 49,680। एंड MCB के हो ग्रेड B के कितना? 99,360। एंड डीपी के लिए, डीपी 3,920 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। 3,920 इंटू 4 15,680, 31,360। तो ग्रेड ए के और ग्रेड बी के कुल मिलाकर कितने आवर्स चाहिए? Therefore total hours required कितना? 1,15,120 and 2,30,240 labor hours. Is it? अब इसमें देखिए कुल मिलाकर इतने लेबर आवर्स चाहिए आपको, हमें फाइंड आउट करने नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखिए जो 2 नंबर का स्टेटमेंट था ना, जहां पर आपको लेबर की डिटेल्स दी है, उसके नीचे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है वहां पर? द लेबर वर्क्स 8 hours a day for 25 days in a month। लेबर वर्क्स फॉर 8 hours a day 25 days in a month। मतलब एक वर्कर एक महीने में कितने आवर्स काम कर सकता है? 200 आवर्स। एक वर्कर, वो चाहे ग्रेड ए का हो चाहे ग्रेड बी का हो, he can work for 8 hours a day 25 days a month। it means he will work for 200 hours। एक वर्कर 200 घंटे काम कर सकता है and we want 1,15,120 labor hours। अगर एक वर्कर 200 घंटे काम करेगा और कुल मिलाकर हमें लेबर आवर्स चाहिए 1,15,120,
तो बताइए कितने वर्कर्स हमें अपॉइंट करने हैं? 576 के 7 5। पहले तो मैं इतना लिख दूं, मंथली आवर्स पर वर्कर कितना? 200 and 200. Therefore, number of workers required. अब जो आंसर है कल से वो बताइए मुझको। 575.6. 575.6. So this is undoubtedly 576. और ये कितना आएगा? 2,30,240 divided by 200. 1,151.2. तो वर्कर कितना लूं यहां पर मैं? 2 के 1. It should be the next full figure. वर्कर फ्रैक्शन में नहीं लाते आता है, ठीक है? It is to be taken as the next full figure. वर्कर जो रहेगा, it is always to be taken as the next full figure. ठीक है? तो यहाँ तो था 575.6, तो हमने राउंड अप करने के लिए 576 नहीं किया, तो वो 0.1 भी आता ना, तो भी उसको नेक्स्ट फुल फिगर ही लेना पड़ता आपको। समझे क्या? हाँ सर, लिखो। सो इट इज 576 and 1,152। हाँ बोलो। अच्छा, ये दोनों आवर्स अगर तूने ऐड कर दी है, ठीक है, सो दैट इज 1,15,120 प्लस 230 240, तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा उसमें एक कम लगेगा फिर, ठीक है? लेकिन दो वर्कर्स अलग अलग टाइप के हैं। एक ग्रेड ए वर्कर है, उसका शायद क्वालिफिकेशन जो है, उसका ग्रेड नॉलेज एक्सपीरियंस वो अलग होगा, ग्रेड बी वाले अलग अलग होंगे। समझे क्या? ठीक है? दो बीकॉम वाले भी एक साथ में ला दे तो भी एक से की बराबरी नहीं कर सकते, बराबर है? आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा ये। so, इसलिए दोनों को ऐसा मिक्स मत कर, ठीक है? ग्रेड ए वाले का नॉलेज एक्सपर्टाइज अलग होगा, ग्रेड बी वाले का अलग होगा, ऐसा ऐड नहीं करते आएगा। सो हियर नेक्स्ट, वेजेस पर मंथ, पर वर्कर पर मंथ, पर वर्कर पर मंथ। देखिए हियर ही इज वर्किंग फॉर 200 आवर्स एंड वेज रेट क्या है? 5. सो हियर इट इज रुपीज 1,000 एंड हियर रुपीज, वेज रेट क्या है ग्रेड बी का? 4. सो इट इज 4 into 200, रुपीज 800, rupees 800. Therefore, total wages, the number of workers into monthly wages, there are 576 into 1,000, 5,76,000, and 1150 into 800, 9,21,600. Got it? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने वर्कर्स चाहिए, तो हमने क्या किया? सबसे पहले कितने लेबर आवर्स चाहिए टोटल टू मैन्युफैक्चर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, एसीबी एमसीबी डीपी को कुल मिलाकर कितने, किस ग्रेड के कितने लेबर आवर्स चाहिए, वो हमने फाइंड आउट किए। वी रिक्वायर द टोटल आवर्स 1,15,120 एंड वन वर्कर कैन वर्क ओनली फॉर 200 आवर्स। ये 115,120 मंथली रिक्वायर्ड आवर्स है, and in 1 month one worker can work only for 200 hours. So on that basis the required number of workers, his monthly wages find out किए, multiply कर दीजिए, you will get the monthly wages। ये हमारा requirement था। Clear? समझ में आ गया आपको? This is what the problem for 20 marks है। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम ही तो है सर, और क्या है? सचिन पूरा देखा, देखो मैं इसमें as I said, this is very fine combination of your marginal costing and budgetary control, क्योंकि initial stage में जो आपको सबसे पहले जो sales quantity find out करनी है,
उसके लिए हमने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके वी गेट दी कंट्रीब्यूशन पर सेल्स मिक्स, फिर उससे हमने टोटल डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को हमने डिवाइड किया एंड वी गेट दी टोटल सेल्स मिक्स। सो टोटल सेल्स मिक्स है 2100 मल्टीप्लाइड बाय 342, वी गेट द सेल्स क्वांटिटी एंड देन इन वैल्यू, सेल्स इन वैल्यू, ये हो गया हमारा सेल्स क्वांटिटी। लेकिन हमको फाइंड आउट करना है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो सेल्स क्वांटिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी अलग अलग है, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी ये हमारे बजट के हिसाब से है, लेकिन प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए आपको आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों देखना है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स क्वांटिटी में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो, वी गेट दी प्रोडक्शन क्वांटिटी। फिर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है उसके ऊपर हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिपेंड करता है, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये अलग क्वांटिटी है, रॉ मटेरियल परचेस क्वांटिटी अलग होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो निकाला उसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड लेस करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट दी रॉ मटेरियल परचेस क्वांटिटी, ठीक है। सो रॉ मटेरियल परचेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स कितना कंजम्पशन है प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिपेंड करता है क्वांटिटी टू बी फिनिश्ड गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, गॉट इट। सो अकॉर्डिंगली दिस इज व्हाट, एंड देन फाइनली मैन पावर बजट। क्लियर सबको, समझ में आ गया? ओके, देन